In this video, we will study two-dimensional heat equation. So, two-dimensional heat equation is given by the equation C square del square U over del x square plus del square U over del y square equal to del U over del t, where x and y are the x-axis, y-axis, U is the heat, t is the time. Okay. This equation gives the temperature distribution of the plate in the transient state. Okay. Now, in the steady state, when U is independent of T, that is del U over del T comes out equal to 0, then the above equation turns to be del square U over del X square plus del square U over del Y square equal to 0, which is also known as Laplace equation in two dimensions. So in this topic, we will study this type of equation regarding whenever we use two-dimensional heat equation. Now, with the expression of this equation, if the equation is of in this form, then you must understand this is the equation of two-dimensional heat equation. And this equation can be given and you have to मतलब आपको बोला हो क्वेश्चन में कि you have to solve by using method of separation of variable, although you have to apply two-dimensional heat equation method just because this equation is given there. Although there is given that you have to solve by using separation of variable, but you have to use this method, and this is somewhat different from all the three methods which we study earlier. उन सबसे अलग है, थ्री नहीं दो मेथड है या तीनों मेथड से अलग हैं जो हम पढ़ चुके हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, उनसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग होते हैं. तो अब हम इनकी स्टडी करते हैं एक के बाद एक. तो आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू subject to the boundary conditions u 0, y equal to u l, y equal to u x, 0 is equals to 0 and u x, a is equals to sin n pi x over n. ठीक है. तो देखो आप लोगों को भले ही इधर मेंशन हो कि that you have to use by the method of separation of variable, but since this equation is given, then you come to understand that this is the equation of two-dimensional heat equation. Now see how we will solve this type of question or this type of method, question given in this type of method. जैसे हम लोग हर उसमें क्या करते थे, केस 1, केस 2, केस 3 के सोल्यूशन निकालते थे, फिर हम बताते थे सिंस ये सोल्यूशन हमारी फिजिकल कंडीशन के क्वेश्चन के फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो ये सोल्यूशन सही है. यहाँ क्या करेंगे कि हम हर एक केस में पहले ही रिजेक्ट करते जाएंगे. कैसे, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ मानेंगे लेट u is equals to xy. This is our equation number 1, where x is a function of x only and y is a function of y only. ठीक है. Then del square u over del x square की वैल्यू हो गई x डबल डैश y and del square u over del y square की वैल्यू हो गई x y डबल डैश. अपनी इक्वेशन में रखा, गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन, then given equation is हो जाएगा आपका x डबल डैश y प्लस x y डबल डैश इक्वल टू 0. अब ये देखिए, जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे, जैसे हमने डिवाइड कर लिया तो x डबल डैश अपॉन x प्लस y डबल डैश अपॉन y इक्वल टू 0 है. तो माइनस साइन इसके साथ भी हो सकता है, माइनस साइन इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा और अगर आपने गलत चूज किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो आपको कैसे पता करना है कि आपका माइनस साइन किसके साथ आएगा, वो देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंगली. आप वो वैल्यू देखिए x और y की जिसके लिए आपको नॉन जीरो वैल्यू की u की वैल्यू नॉन जीरो गिवन है. तो देखो यहाँ u की वैल्यू, u की वैल्यू, u की वैल्यू जीरो गिवन है, तो ये तो अलग है. यहाँ हमें y की नॉन जीरो वैल्यू अदर देन y के लिए u की वैल्यू नॉन जीरो गिवन है. फिर से देख लो, यहाँ इनके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए u की जीरो, तो हमें कंसिडर नहीं करना.
पर यहाँ y की एक नॉन जीरो वैल्यू अदर देन y है, जहां पर हमें u की वैल्यू कैसी दे रखी है, नॉन जीरो, अदर वैल्यूज गिवन है। तो जिसकी वैल्यू के लिए हमें u की वैल्यू नॉन जीरो गिवन होती है, उसके साथ हम नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। यहाँ y के साथ, y के लिए गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस y डबल डैश अपॉन y। y के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि y की वैल्यू के लिए हमें u की नॉन जीरो वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखिए केस वन हम लेते हैं, केस वन लेते हैं, जब x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस y डबल डैश अपॉन y इक्वल टू हमने ले रखा है जीरो। तो केस वन हो जाएगा x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू जीरो, x डबल डैश इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर x इज इक्वल्स टू जीरो, जहां d है आपका d ओवर dx। ठीक है, तो ए ई आ गई आपकी m स्क्वायर इक्वल टू जीरो, m की वैल्यू आ गई 0,0, तो आपका CF आ गया C1 प्लस XC2, यही आ गया। अब सिंस Q इक्वल टू जीरो है, इम्प्लाइज PI इक्वल टू जीरो है, इम्प्लाइज कैपिटल X की वैल्यू आ गई C1 प्लस XC2। ठीक है, ये तो आ गई हमारी X की वैल्यू। सिमिलरली हमारी किसकी आएगी, Y की वैल्यू। Y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस y डबल डैश अपॉन y इक्वल टू जीरो, y डबल डैश इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डी स्क्वायर y इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसकी भी वही आएगी, लेकिन हमें दो x की वैल्यू के लिए ये गिवन है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे x ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो है तो u की वैल्यू जीरो है, तो u की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू भी जीरो होगी। तो हमने कर दिया, जब x, क्योंकि सिर्फ x का फंक्शन है और आपने x को जीरो रख दिया तो कैपिटल X भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जब हमने इसमें लगाई तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, जीरो इज इक्वल्स टू C1, यानी C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई, XC2। अब हमने लगाया x ऑफ L इक्वल टू जीरो। क्यों ये जीरो हो गया, क्योंकि आप बता रहे हो जब x की जगह L है तो u जीरो है, u जीरो है, u जीरो है तो x भी जीरो हो गया, तो मैंने लिख दिया x ऑफ L इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन लगाई तो x जीरो इज इक्वल्स टू LC2 आया। L तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, तो यहाँ से C2 इक्वल टू जीरो आ गया, C2 जीरो आ गया तो x जीरो आ गया, x जीरो आ गया तो आपका u इक्वल टू xy से u इक्वल टू जीरो आ गया, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका नॉन जीरो तो सॉल्यूशन लेना ही लेना आपको u की, विच इज इम्पॉसिबल, हेंस रिजेक्टिंग केस वन। केस वन क्या है, व्हेन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपने रिजेक्ट कर दिया। अब यहीं पे हम ले रहे हैं केस टू। केस टू हमने ले लिया इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ गया आपका पी स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आ गया आपका डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पे आपका डी है डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ए ई आ गई आपकी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस आई पी, सॉरी माइनस है ना, प्लस माइनस पी, तो सी एफ आ गया आपका C1 e टू द पावर px प्लस C2 e टू द पावर माइनस px। तो ये सब जीरो है, कैपिटल X की वैल्यू आ गई C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px। फिर से आपने x0 इक्वल टू जीरो की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया जीरो C1 प्लस C2, क्योंकि x की जगह जीरो रखा, e की पावर जीरो इज वन, तो यहाँ से आ गया C1 इक्वल टू माइनस C2 और C2 इज इक्वल टू माइनस C1। आप ऐसे लिख दो C2 इक्वल टू माइनस C1। तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई आपकी, C2 की जगह माइनस C1 रख दे, तो C1 अगर मैंने वैल्यू रख ली तो e की पावर px माइनस e की पावर माइनस px, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमने x ऑफ l इक्वल टू जीरो रखा, तो यहां से आ गया हमारा जीरो इज इक्वल टू C1 e टू द पावर pl माइनस e टू द पावर माइनस pl।
अब e to the power pl minus e to the power minus pl cannot be equal to 0. Why? Because we know that the exponential function cannot be equal to 0. तो ये तो equal to 0 हुआ नहीं, तो यानी c1 equal to 0 हो गया, यानी x is equal to 0 हो गया, यानी u equal to xy equal to 0 हो गया, which is again impossible, hence rejecting case second, that is when constant is equals to p square. ठीक है, अब लेते हैं केस थर्ड. केस थर्ड हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर. ये आ गया माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया प्लस में, ये आ गया आपका प्लस में, ये डी ओवर डी एक्स हुआ, ये प्लस में आ गया, ये प्लस माइनस आई पी आ गया, तो सी एफ आ गया आपका कॉस पी एक्स, सॉरी सी एफ आ गया आपका सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स. तो वही हुआ आपका, ये सारे आपका जीरो है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स. ठीक है, तो आपने वही वाला लगाया, एक्स जीरो इज इक्वल्स टू जीरो लगाया, तो जीरो इज इक्वल्स टू सी वन हो गया, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई आपकी सी टू साइन पी एक्स. एक्सएल इज इक्वल्स टू जीरो है, तो जीरो इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सी टू साइन पी एल. तो यहां से आपको मिल गया साइन पी एल इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, पी की वैल्यू आ गई एन पाई ओवर एल, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई सी टू साइन एन पाई एक्स ओवर एल. अब y के लिए माइनस वाई डबल डैश वाई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो ये भी वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा आपका वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, जहां डी आपका डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई हो जाएगा, तो ए ई आ गई आपकी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पी, तो आपका सी एफ आ गया सी थ्री ई टू दी पावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी वाई. सिंस क्यू जीरो है पी आई जीरो है, इसलिए ये वैल्यू किसकी आ गई, y की, सी थ्री ई टू दी पावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी वाई. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, अच्छा एक हमें दे रखा है कि जब हम y की जगह जीरो रखेंगे तो u जीरो है, एक हम यही रख लेते हैं y जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स सॉरी जीरो इज इक्वल्स टू सी थ्री प्लस सी फोर, यही बचा, तो सी फोर इज इक्वल्स टू माइनस सी थ्री, तो y की वैल्यू आ गई सी थ्री, अगर हम कॉमन ले लें ई टू दी पावर पी वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस पी वाई, ये वैल्यू आ गई y की. देन फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन u इज इक्वल्स टू एक्स वाई था, तो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी सी टू साइन एन पाई एक्स ओवर एल, सी थ्री ई टू दी पावर पी की जगह हमने एन पाई वाई ओवर एल लिख लिया माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई वाई ओवर एल. ठीक है, तो द मोस्ट जनरल solution is, क्या आ जाएगा, u एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन बी एन ई टू दी पावर एन पाई वाई ओवर एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई वाई ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल. ठीक है, ये आ गया मोस्ट जनरल सोल्यूशन. अब ये लास्ट इनिशियल कंडीशन लगा ली, पुट एट y is equals to a, u is equals to sin n pi x over l, यही है ना, n pi x over l की वैल्यू दे रखी है, और मैं चेक कर लूं, n pi x over l है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने पुट करी, तो ये आ जाएगा sin n pi x over l इक्वल टू समेशन बी एन, आपने जब y की जगह a रखा तो ये आ गया e टू दी पावर n pi a over l माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई ए ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर
एल। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको जब आप देखोगे, ये आपको किसके फॉर्म में लग रही है, ये वैल्यू लग रही है ना। अब यहाँ से आप बी एन की वैल्यू सीधे सीधे क्या सॉल्व कर सकते हो, हेयर बी एन इज इक्वल्स टू साइन एन, मतलब अगर हम कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करें ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ n वाला है, यहाँ भी n वाला है, समीशन हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू बी एन ई टू दी पावर एन पाई ए ओवर एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई ए ओवर एल। तो बी एन की वैल्यू मिल गई मुझे 1 अपॉन ई टू दी पावर एन पाई ए ओवर एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई ए ओवर एल। ये मिल गई मुझे बी एन की वैल्यू। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3 भी मान लेते हैं, ठीक है। then equation 3 becomes then equation 3 becomes, हम रख दें bn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें मिल गई u x y is equals to bn की वैल्यू आपने रख दी 1 अपॉन e टू दी पावर n पाई a ओवर l माइनस e टू दी पावर माइनस n पाई a ओवर l, n इक्वल टू 1, ये तो यही रहेगा, e टू दी पावर n पाई y ओवर l माइनस e टू दी पावर माइनस n पाई y ओवर l, ये तो यही रहा आपका। और ये हो गया साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो देखो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड, इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, ये टर्म आ गया आपका, दिस कैन बी रिटन एज, ये हटा रही हूं मैं, आप इसको लिख सकते हो यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला ये टर्म हो गया साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई ओवर एल, ये नीचे हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए ओवर एल, और ये यही रहा साइन एन पाई एक्स ओवर एल। दिस इज द आंसर। अच्छा मैं बता दूं, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, वही फॉर्मूला लगा है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गई, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे कि ये है, इसमें हिंट लिख लीजिए, इसमें वर्ड आता है प्लेट और प्लेन, इन दोनों वर्ड से आप पहचान जाओगे कि 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नाउ रीड द क्वेश्चन। A rectangular plate with insulated surface is 8 centimeter wide and so long compared to its width that it may be considered infinite in length without introducing an appreciable error. If the temperature along one short edge y equal to 0 is given by ux0 is equals to sine 100 sine pi x by 8, where x is lying between 0 to 8. While the two long edges x is equals to 0 and x is equals to 8 as well as the other short edge are kept at 0 degree centigrade. Show that the steady state temperature at any point of the plate is given by this formula. Okay. So since the word come plate, therefore it is our 2 dimensional heat equation. अच्छा तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे ये है आपकी, ठीक है, ये 2 प्लेट आपकी रखी गई है, दोनों आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, ए और बी पॉइंट है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू 8 है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का डायग्राम बनेगा, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, ठीक है। तो कुछ कुछ एक डायग्राम ऐसा बनेगा। अच्छा इसमें दे क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू 8 u इक्वल टू 0, देखिए ठीक है ना। और एक दे रखा है ये इनफाइनाइट वाला दे रखा है, वो हमें क्या दे रखा है, अच्छा पहले तो ये भी दे रखा है एट टी इक्वल सॉरी y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 100 साइन पाई x ओवर 8, ठीक है। और एक हमें क्या दे रखा है, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी u x y इज इक्वल्स टू 0, एक हमें ये दे रखा है ना, फिर इट मे बी appropriate error,
तो ये वैल्यू आपकी ये दे रखी है, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये वैसे भी एक हमारे जो होती है इनिशियल कंडीशन होती है, एक हमें गिवन होती है एट y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू इंफिनिटी पर हम ये लेते हैं कि जैसे हमारा टेम्परेचर का इंफिनिटी पर जाएगा या y हमारी इंफिनिटी पर होगी तो हीट जो होती है वो हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन एक के बाद एक। मैं पूरा क्वेश्चन मिटा के सॉल्व कर रही हूँ, कंडीशन तो ये लिखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, तो मैं क्वेश्चन रब कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन थी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन दी स्टडी स्टेट फॉर्मेशन में हम लिखेंगे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। Let u is equals to xy, where x is a function of x only and y is a function of y only। ठीक है, ये आपको गिवन है, आप कंडीशन वही पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए आप माइनस साइन किसके साथ रखेंगे, आपको किसके साथ गिवन है, माइनस साइन आप किसके साथ रखेंगे, माइनस साइन अगेन आप किसके साथ रखेंगे, y के साथ। क्यों, क्योंकि y के लिए ही हमें वैल्यू u की नॉन जीरो गिवन। तो देखो x के लिए 0 के लिए सॉरी x 0 और 8 के लिए u की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, नॉन जीरो किसके लिए, y के लिए, तो हम नेगेटिव साइन y के साथ ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज x डबल डैश y प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन y इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, माइनस पी स्क्वायर के साथ ही लेंगे। ठीक है, तो माइनस पी स्क्वायर के साथ लेंगे तो आपका ये आ जाएगा x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लिया तो x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ डी हमारा डी ओवर डी एक्स, तो ए ई आ गई हमारी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, एम आ गया हमारा प्लस माइनस आई पी, तो सी एफ आ गया सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। तो हम लोग यही लगा देते हैं, सिंस क्यू इक्वल टू 0 तो पी आई 0 हो गया आपका, तो ये वैल्यू हो गई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ठीक है, तो आपने पहले वाली लगा ली, तो हमने ले लिया एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू सी वन, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई सी टू साइन पी एक्स। अब हमने लगाया एक्स ऑफ 8 इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 0 इज इक्वल टू सी टू साइन 8p, तो साइन 8p इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन एन पाई, कट गया तो p की वैल्यू आ गई एन पाई बाय 8, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई सी टू साइन एन पाई एक्स ओवर 8। नेक्स्ट हमने लिखा y डबल डैश अपॉन माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपका y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर y इक्वल टू 0, जहाँ d है आपका d ओवर dy, तो ए ई आ गई आपकी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पी, तो सी एफ आ गया आपका सी थ्री ई टू दी पावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी वाई। ठीक है, तो सिंस क्यू 0 है तो पी आई भी 0 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई y की सी थ्री ई टू दी पावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी वाई, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, पुट लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, तो लिमिट ऑफ u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू
0। तो इसमें तो हमें u में ही लगा पाएंगे, अभी हम y में लगा नहीं सकते क्योंकि u की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन टू, ये मिटा देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन टू u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x की वैल्यू रख दी c2 साइन n पाई x ओवर 8 और ये रख दिया c3 e टू द पावर पी वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस पी वाई। अब लिख लिया पुट लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी, ये हमेशा गिवन होती है कंडीशन, आपको हमेशा ये कंडीशन मतलब कंसिडर करनी है हर क्वेश्चन में 2 डायमेंशनल में, बस इनिशियल कंडीशन यही होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू c2 साइन n पाई x ओवर 8 लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी c3 e टू द पावर पी वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस पी वाई। तो देखो इसके लिए हमें मिल गया दिस इम्प्लाइज c3 इज इक्वल्स टू 0। क्यों मिला c3 0? y टेंस टू इंफिनिटी है, तो अगर मैं y की जगह इंफिनिटी रखूंगी तो ये e की पावर इंफिनिटी आएगा और ये e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है, ये इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो इंफिनिटी आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए 0। तो ये 0 कब आएगा? जब c3 0 हो जाएगा। c3 जब इंफिनिटी के साथ 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा इंफिनिटी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा जिसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इंफिनिटी की कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, c3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर अगर मैं मानूं 30, then equation 3 becomes u of x comma y equal to c2 sin n pi x over 8 c4 e to the power minus py। the most, अच्छा p की जगह आप यहाँ भी n pi लिख लीजिए, n pi y over 8 हो जाएगा। the most general solution is uxy is equals to summation bn e to the power minus n pi y by 8 sin n pi x over 8, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में आप लास्ट अपनी इनिशियल कंडीशन रख दीजिए। इन इक्वेशन 4 पुट एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू सॉरी एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 100 sin pi x over 8, आपने रख दिया 100 sin pi x over 8 इक्वल टू समेशन bn y इक्वल टू 0 थे तो 1 हो गया sin n pi x over 8। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखोगे, दिस कैन बी रिटन b1 sin pi x by 8 प्लस b2 sin 2 pi x by 8 प्लस so on। तो ऑन कंपेयरिंग आपको किसकी वैल्यू मिल गई, sin pi x by 8 को sin pi x by 8 से कंपेयर किया तो हमें b1 की वैल्यू मिल गई 100 और बाकी सारी की वैल्यू आपको क्या मिली, so on bn so on सब की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव uxy is equals to, आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो b1 आया, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 और n इक्वल टू 1 रखा तो e की पावर माइनस n पाई, सॉरी n की जगह तो 1 रख दिया हमने, e टू द पावर माइनस पाई y बाय 8 और n की जगह आपने 1 रखा हुआ है तो ये भी आ गया आपका साइन पाई x बाय 8। तो आप वापस रिकैप में जाना, जहां मैंने क्वेश्चन लिख रखा है वहां देखोगे तो आपको यही प्रूफ करना था आपके क्वेश्चन में। दिस इज द आंसर।